भग जाओ यहाँ से पंडित के घर पे पोस्टर चिपके लिखा खून से असी गाची पाकिस्तान बतवर रोस्ते बदनेफसान औरतों को रखेंगे मर्दों को मार देंगे हम जान। Namaskar, everyone. Good morning from New Mexico. And today we have someone super important. I will come to him in a couple of minutes, but I want to remind everyone that this has been asked of me. Um, what is the difference between hate crime and genocide? Raphael Lemkin defines genocide. I'm just reminding because we have gone through this before. The destruction of a nation or an ethnic group. Genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all the members of a nation. It is extended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of the essential foundation of the life of national groups with the aim of annihilating the groups themselves. That's exactly why Hiroshima and Nagasaki are not genocide. I'm just reminding. And a better, I think, a better definition is from Kashmiri Pandit, who did this long time back. He wrote in his third Raj Tarangini, he said that genocide is jati vidhwans. Jana Nam Jati Vidhwang Suhavatta Krita Dayam. He talked about Suhavatta who was doing Jati Vidhwangs, annihilation. The most important thing is intent. You want to annihilate an entire group. That's all for my introduction because we have a very important guest today. He's a Kashmiri Hindu and he's a survivor. For me, in my training, I know that the best way for us to heal is when we hear stories. So I have some questions for Bhushan Lal ji. Despite his busy schedule, he has given us time. He's here. So dhanyavad Bhushan Lal ji, and welcome to the show. And you are an actual experience here. So what I'll do is I will share the questions with the audience, and then I will have the questions in two languages. First, I'll read them in English, then I'll try to translate them in Hindi, and Bhushan Lal ji will answer it Hindi, and of course, it will be subtitled later on. All right. So, Bhushan Lal ji, we know your name, but we would like you to tell your name and your current place of residence. That's in English. Now I'm going to translate it in Hindi. आपका नाम और आप किधर अभी आप किधर है? Madam, can I answer now? Yes. My name is Bhushan Lal Bhatt. And मैं कश्मीर में पहलगाम एरिया द बेस्ट टूरिस्ट रिजॉर्ट जो था उस एरिया से हूँ और टुडे आई एम रिजाइडिंग इन ए शरणार्थी शिविर विच इज ए मतलब accommodation provided by the government for we people, one room tenement known as one room tenement. तो उसमें हम मतलब एक फैमिली रहती है एक कमरे में, उसमें एक किचन भी होता है, एक बाथरूम होता है। उससे पहले हम जब हमारा जाति विदंस हुआ कश्मीर से, तो उस वक्त हम टेंटों में रहते थे फॉर मोर अप टू फ्रॉम 90 टू 2011 हम टेंटों में रहे। जो कपड़े के बने हुए थे उसके नीचे रहे, जो उनको आंधी उठा कर ले जाती थी, जिनमें बारिश, धूप, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू सब हमला करते थे, उन्हीं में रहते थे। उसके बाद 2011 में हमें इस कैंप में शिफ्ट किया गया, अनदर माइग्रेशन फॉर वी पीपल। तो यहाँ आए हम, तो इसमें हमें सबसे ज्यादा यही मिला कि एक कमरा, किचन और एक बाथरूम मिला। Thank you, धन्यवाद. My next question. Which year you came to Jammu? Now I'm saying it in Hindi. अब कौन साल में जम्मू में आए? We were handed out in the month of February 1990. उसमें जब 19 जनवरी का जो सबसे बड़ा जो घातक दिन था हमारे लिए, जिस दिन
पूरी रात लाखों लोग फ्रॉम बानीहाल टू दिस करना टंगडार बॉर्डर, सब रातों रात एक जगह जमा हुए मस्जिदों में, लाउड स्पीकर्स पर, रोड्स पर, और उनके नारे जो थे वो थे वही बांट पाकिस्तान, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफ़ा, बट ओवर बट न्यूसान, ये ऐसे गए पाकिस्तान मीन्स विदाउट मैन विथ लेडीज ऑफ कश्मीरी पंडित्स, वी नीड पाकिस्तान विदाउट मैन बट विथ लेडीज, So रिलीव the गलिव ladies have to be there, men go. यस एंड मर्द ने देन आप चला जाइए, हाँ. देन और एक मनारा था कि रिलीव गलिव तो चलिव, यानी इधर लेफ्ट और डाई और और कन्वर्ट, कन्वर्ट, चलियो गलियो तो रिलियो, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफ़ा, तो यानी इस्लामिक रूल चलेगा और कुछ नहीं, ओनली इस्लामिक रूल। तो रात वो इतनी भयानक थी कि कई लोगों ने अपने घरों में फीमेल फोक के सामने पॉइजन तक रख दिया कि अगर हमला हुआ तो आप ये खा लेना, ताकि उन आतिताइयों के हाथ में आप ना आए। तो बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। वही रात की मैनेजमेंट बेसिकली उसी वही रात जिम्मेदार है हमारे जेनोसाइड की, हमारे जाति विध्वंस की। उसी रात हमारा सब कुछ छीना गया, हमारा छत, हमारा घर, हमारी गाय माता हमारी हमसे छीनी गई, हमारे पेड़ पौधे, रोजी रोटी, रोजगार, बिजनेस, खेत खलियान, रिलीजियस प्लेसेस, सब उसी रात हमसे छीनी गई। That is the introduction. फिर और क्वेश्चन इधर में जाएगा और फिर डिटेल्स में हम जाएगा, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोलिए साहब, फॉर द कश्मीरी हिंदूज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल? आपको जो पूजा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? शिवरात्रि, हाँ, हम लोग शिवरात्रि। तो शिव भक्त है. Could you when you are doing the pujas and the festivals, could you do it smoothly, or they were creating, the Muslims were creating problems? एक्चुअली ये फेस्टिवल हमारा 15 डेज का होता है। जैसे नवरात्रा का 9 दिन होता है, ये हमारा 15 डेज का होता है। हाँ, ये फागुन मास के कृष्ण पक्ष जो होता है उसकी प्रतिपदा से पूरी अमावस्या तक चलता है। डे 1 इज नोन एज हुड उगदो, यानी उस दिन हम लिपन वगैरह का कार्य शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा 15 दिन चलता है। तो इसमें ये हमें मैक्सिमम के प्रोग्राम नाइट को करने पड़ते थे, क्योंकि रात को हम नहीं कर पाते थे ये। अच्छा, ये दिन को नहीं कर पाते थे, क्योंकि मैक्सिमम काम नदी पर होता था, तो वो राक्षस की तरह देखते रहते थे। इसलिए वो मैक्सिमम काम, जैसे अखरोटों को पानी डालना नदी पर, वहां पर पूजा करना उनको फिर घर लाना, फिर जिस दिन अमावस्या के दिन विसर्जन होता था वो भी हम रात में ही करते थे। तो ये रात में करते थे इसलिए कि वो प्रॉब्लम करते थे दिनों में, इसलिए मतलब वो जब बाद में वो ना, मतलब ऐसे मजाक उड़ाते थे हमारे त्योहारों का, मतलब उन दिनों का मजाक उड़ाते थे। वो दाल बटा ये क्या करता था, दाल बटा दीप क्यों जलाया था नदी पर, दाल बटा मीन्स कश्मीरी पंडित को नाम रखा था दाल बट। हाँ, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है दाल बटा? बट एक्चुअली दाल मीन्स दाल ही, तो बट एक्चुअली हमारे यहाँ बट जाति भी होती थी और ये हमारे वैरियर भी रहे हैं बट, तो उसको बट, अब सबको कश्मीरी पंडितों को वो बट ही बुलाते थे। आज भी अगर आप उनको बोलोगे तो वो बोलेंगे बट। कभी अगर गुड सेंस में बोलेंगे तो बोलेंगे बट भाई, यानी बट बरादर, भाई, तो ब्रदर, बट ब्रदर, तो ऐसे बोलेंगे। अगर बैड सेंस में भी बोलना होगा तो दाल बट बोलेंगे। So when you are doing the festival, they would make fun, मजा करते थे। Yeah, yes. All right, so but when you are growing up,
childhood, did you face any bias against you, like when you were going to school and when you are going out, and everyone, as a Hindu, did you face bias, like they were saying things or doing एक्चुअली क्या something? था कि एक्चुअली क्या था कि को एग्जिस्टेंस को हम ही चला रहे थे, को एग्जिस्टेंस को। जैसे कि उनका चिरारी शरीफ एक स्थान था, मतलब रिलीजियस प्लेस थी उनकी, हम लोग वहां जाते थे, अपनी मतलब वो क्या बोलते हैं, अपनी फेथ को वहां इजहार करते थे, उसको वो करते थे उसके सामने। ऐसे दस्तगीर साहब था श्रीनगर में, हम उसके सामने जाते थे, वहां से वो चावल प्रसाद के रूप में सूखे चावल देते थे, हम उसको ले आते थे घर। ऐसे जितनी भी उनकी रिलीजियस प्लेसेस थी उन पर हम जाते थे, हाजिरी देते थे, डोनेशंस देते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है कि वो किसी हमारी रिलीजियस प्लेस पर आते थे। सो को एग्जिस्टेंस को हम चला रहे थे। इसके अलावा भी जो उनकी नेसेसिटीज, जैसे कभी डॉक्टर के पास जाना होता था, हॉस्पिटल में, वकील के पास, तो हम उनकी हेल्प करते थे, वो रीजन था। इवन एजुकेशन, वही प्रोवाइडेड देम एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी आप पुराने ऑफिसर्स देखोगे उनमें वो बोलेंगे कि हमें कश्मीरी पंडित ने मुफ्त पढ़ाया है। तो को एग्जिस्टेंस को हम चला रहे थे, वो नहीं चला रहे थे। वो हमारा मजाक ही उड़ाते थे, लेकिन को एग्जिस्टेंस को, उसके कारण उतना बैड फील नहीं होता था अप टू 86 में। पहला अटैक उन्होंने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में किया कश्मीरी पंडितों पर, on a fake allegation that some Muslims were killed in Jammu, जो सच नहीं था, जो रॉन्ग था। तो उसके हिसाब से उन्होंने हमें 86 में हमारे कुछ मंदिर जलाए, कुछ महलों पर हमला किया, कुछ जगहों पर। तो ऐसा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी लगभग ट्रिपल हो गई थी 86 के बाद ही, उनका साथ ही दे रही थी उनको, मतलब वो न्याय नहीं कर पा रही थी। फॉल्स एलिगेशन, ये तो बांग्लादेश में सेम होता था। दीपू दास को फॉल्स एलिगेशन किया, फॉल्स एलिगेशन में ये तो हर वक्त देखिए द सेम थिंग इज हैपनिंग, सेम थिंग। देखिए देखिए मैडम, इनका क्या होता है, जो हमने अब जज किया है, पूरा एनालाइज किया है आफ्टर आवर जाति विधनश, ये हमेशा एक माहौल का इंतजार करते हैं। छोटे छोटे बहाने ये पहले से ही करना शुरू करते अपॉर्चुनिटी, हैं। हाँ। अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मस्जिद इक्सा पर इसराइल ने हमला किया मच बिफोर। मैं अपने साथ एक्सोडस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मैं मतलब एक समझदार गति बन गया था, जब आफ्टर माय मैट्रिक ये हुआ था कि मस्जिद उक्सा पर इसराइल ने हमला किया था। हिंदुस्तान ने तलवी में अपनी मतलब सफारत खाना भी नहीं खोला था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने श्रीनगर में हिंदुओं को लूट के आसाराम की दुकान लूटी, जितने भी हिंदुओं के दुकान थे वो लूट लिए। उसके बाद फ्रांस के किसी ऑथर ने बुक ऑफ नॉलेज लिखी और उसमें उसने प्रॉफिट मोहम्मद का फोटो दिखाया, तो उस पर अनंतनाग में हिंदुओं के दुकान लूट लिए। ये हमेशा इस चॉइस, यानी ये बहाना गाय, सब। हाँ, यानी गाय घास इंडिया में खाए और बकरी को मार पाकिस्तान में पड़े, ऐसा कर रहे थे ये हमारे साथ। तो फिर ये बहाना ढूंढते हैं। फिर जब ये देखते हैं कि बिल्कुल मतलब वातावरण जो है वो हमारे अनुकूल है। 90 में क्या हुआ कि हमारे होम मिनिस्टर वो भी कश्मीरी मुसलमान था, मुफ्ती मोहम्मद सईद, इंडिया गवर्नमेंट का चीफ मतलब होम मिनिस्टर। उसी वक्त चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला भी था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इन देयर फेवर। जमात इस्लामी अपने पूरे यावन पर था। तो उस वक्त इन्होंने अपने को समझा कि दिस इज द प्रॉपर टाइम टू हॉन्ड देम आउट, इनको बाहर धकेलना, यही समय है इनका जाति विध्वंस करना, यही वक्त है जो प्रॉपर है। इसके बाद शायद हमें ये टाइम ना मिले। Understand now. Can you tell us some happy incident from Pahalgam from your
childhood memory, because that's where you spend your childhood. आपका पहलगाम जो में देखे हैप्पी मोमेंट्स होते थे जब किसी फिल्म की शूटिंग होती थी। अच्छा, हाँ, तो हम जाते थे शूटिंग देखने के लिए, बहुत बहुत बॉलीवुड फिल्म मजा का आता था। शूटिंग होता हाँ, था। बॉलीवुड, हाँ बहुत हाँ, होता था। अच्छा अच्छा, अच्छा। बहुत मजा आता था उसमें। जैसे फिल्म लावारिस, ऐसे बहुत सारे फिल्म थे। लावारिस की शूटिंग मेरे गांव में भी हुई है, सिलीगाम में। हम्म, हम्म। तो बड़े, हाँ, वो मतलब उसमें एक गाना ये भी था कि जिसका कोई नहीं खुदा है यारो। तो ऐसे मतलब बहुत सारे ये थे कि मतलब शूटिंग इवेंट्स होते थे। इसके अलावा जब हम कभी अपने आप भी खुद जाते थे ना, मतलब जैसे पहला मतलब हमारा साल वर्ष जो चित्र महीने में शुरू होता है, तो हम पहले दिन पहलगाम जाते थे टू एंजॉय। तो नाले लेदर के किनारे, या जब हम अमरनाथ जाते थे तो पहलगाम के रास्ते से ही जाना पड़ता था। तो पहलगाम में बड़ा एंजॉय करते थे हम, बहुत मजा आता था। तो पहलगाम के वो मोमेंट्स हमें याद हैं। ज्यादा घर से दूर भी नहीं था। इवन समटाइम्स कोई टूरिस्ट ऐसा मिलता था जिसको हम घर लाते थे, स्पेशली फॉरेनर्स। अच्छा। मुझे याद है एक दिन मैंने एक हॉलैंड का अंग्रेज अपने घर लाया। तो उसको शाम को देखना था सनसेट। तो वो पहलगाम में नहीं देख पाया था बादलों के कारण। तो हमारे विलेज में पहुंचकर वो गाड़ी से नीचे उतरा। दैट वाज द लास्ट सर्विस फ्रॉम पहलगाम टू अनंतनाग। तो उसके बाद उसको कोई गाड़ी नहीं मिलनी थी, तो उसको मैंने घर लाया। ये एंजॉयड अवर मतलब एट अवर रेजिडेंस फॉर 3 days देन। तो ऐसे मतलब वो मोमेंट बहुत अच्छे होते थे। So now we come to the most difficult part. आप बोलिए वो जो रात आप सब छोड़े पहलगाम, the fleeing, the exodus. Please tell us that story. That is देखिए a ना very, मैडम, वो रात जो थी वो भयानक थी, वो बहुत आपको जबरदस्त आपको खतरनाक। मामा का मर्डर हुआ ना दिन में, हाँ, वो मेरे मामा सेम का डे वो तो यू, हाँ, वो तो उसी प्लीज स्टार्ट देयर। एक्चुअली एक्चुअली क्या था कि सब कुछ जो तैयारी हो रही थी 19 जनवरी की ही तैयारी हो रही थी। चाहे उससे पहले जितने भी मर्डर, जैसे हमारा बलिदान हुआ पंडित प्रेमनाथ भट्ट का, हमारे सर्वानंद प्रेमी और उसके बेटे को, दोनों को कट्ठे को घर से एक साथ घर से उठाकर ले गए और सवेरे डेड बॉडीज पेड़ के साथ लटकी हुई मिली। ऐसे सरला भट्ट पुलिस को क्या करते थे, ये होता है, पुलिस चुप रहते थे। मैंने बोला ना, जब ये देखते हैं कि वातावरण हमारे अनुकूल है, होम मिनिस्टर इज अवर्स, चीफ मिनिस्टर इज अवर्स, डीजी इज अवर्स, चीफ सेक्रेटरी इज अवर्स, So it was a ये जब सब कुछ program. देखते, Yes. Hmm. हाँ ये ऐसे करते हैं। ऐसा इस वक्त बांग्लादेश में भी हो रहा है। जब वो देख रहे हैं Exactly. कि यूनिस इज विथ अस, तो आपने So नहीं we'll do देखा what होगा we कि can. is there any person, any administrative officer, any minister, any bureaucrat, any diplomat from Bangladesh who condemned the attacks on Hindus? No. Right. Same हाँ, was अब the बोलिए। condition in 90 for we people. हम्म, Same was the condition for we people in 90s. हम्म। तो So in the morning मामा तो खून हुआ। बात तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे घर के सामने एक मस्जिद थी। उसके उसके बगल में एक दुकान थी मेरे दोस्त की, अब्दुल रहमान की। उसने मुझे बुलाया कि मैं, फ्राइडे का दिन था, मैं जामिया में जाता हूं मैं नमाज पढ़ने, आप मेरी दुकान की रखवाली करिए। वो 3 बजे भी नहीं आया, 4 बजे भी नहीं आया, 5 बजे वो वापस आया। तो उसने अपने एक रिलेटिव को कहा, घर के सदस्य को, कि कुछ चटाइयां घर से ले आओ। उनको मस्जिद के सामने बिछाया। कुछ देर के बाद मैं देख रहा हूं कि 16-17 गांवों से लोग वहां आ रहे हैं। 16-17 गांवों से, ऑल मुस्लिम रनिंग टुवर्ड्स दैट मैसो। तो उतने में उसके बाद एक गाड़ी आई जिसमें से 5 गन यील्डिंग जवान नीचे उतरे। 5 गन यील्डिंग, जो यासिर अरफात का वो जो सिकारफ होता था वो सर पर बांधे हुए थे। 4 ने 4 कूने संभाले, एक मस्जिद के अंदर गया और उसने भाषण देना शुरू कर दिया।
फिर वो बाहर निकला, दूसरा अंदर गया तो उसने एक कोना संभाला। ऐसे जब तीसरा गया तो तब तक माहौल उनको फ्रेंडली हुआ था आम लोगों को। तो उन्होंने उससे पूछा कि फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर। ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम करती थी, जमात इस्लामी की, मतलब हिजबुल मुजाहिदीन था, JKLF था, ऐसे अल उमर था, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उन्होंने उनसे पूछा आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो उसने कहा हमें ये सवाल मत पूछो, एक ईदगाह है जिसमें 4 दरवाजे हैं, चारों तरफ से लोग आएंगे, उनका मकसद है नमाज पढ़ना। ऐसे हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, आवर मोटो इज टू लिबरेट जम्मू एंड कश्मीर, टू हैंड आउट आवर दोज काफिर्स फ्रॉम दिस वैली, यहाँ निजाम मुस्तफा को लागू करना। तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा आप बाहर देखो क्या हो रहा है। मैं तब तक घर आया था, शीशे की खिड़की से मैं देखने लगा, ये बहुत ही बुरा हाल था, पूरा मतलब डरावना समा था। तो उसने मुझे बोला कि पापा गया है फलानी दुकान पर, एक और पंडित जी की दुकान थी, उसको बुलाओ। मैंने बोला माँ नहीं, उसको नहीं बुलाएंगे, अगर ये कुछ हमला वमला करेंगे कम से कम पापा तो बच जाएंगे। तो उसके बाद जब वो निकले, डिलिबरेटली उन्होंने हमारे आंगन में फायरिंग की, डिलिबरेटली। इनका क्या मकसद होता था कि पहले ये जो आत्मा होती है समाज की, द लीडिंग पर्सन ऑफ द मतलब कम्युनिटी, उनको किल करना। उसके बाद छोटे समाज को, जो बेचारे गरीब होते हैं, जैसे आपने दीपदास की बात की, ऐसे लोगों को भी मतलब जो यंग उनमें होंगे उनको किल करना, ताकि छोटी जनरेशन मतलब छोटी मतलब जो कमजोर तबके के लोग हैं उनमें भी एक डर पैदा हो। जैसे हमारे में सरला भट्ट को जिंदा आरी पर चीर लिया गया, वो सिर्फ बेचारी अपना पे कलेक्ट करने के लिए आई थी और उसको पकड़ा गया। उसके बाद उसके साथ वो मैं बता नहीं सकता हूं कि एक फीमेल लड़की के साथ, हम भी बाल बच्ची वाले हैं, क्या किया 5 बंदों ने कंटिन्यूअसली। उसके बाद उसको चीरे पर, आरे पर जिंदा चीर लिया गया 2 पार्ट्स में। ये था कि सिर्फ हमको डराना, दहशत देना, घबराना, और हमें दिखाना कि मतलब जस्टिस नीलकोट गंजू को मारना ये था कि जजेस को इंफॉर्मेशन देना, एडवोकेट प्रेमनाथ भट्ट को मारना ये था कि एडवोकेट्स को इंफॉर्मेशन देना, दूरदर्शन के डायरेक्टर को मारना मीडिया को इंफॉर्मेशन देना। हर चीज सोची समझी चाल के तहत किया जा रहा है। इसके पीछे बाकायदा तौर पर एक माइंड होती है जो हमने पूरी तरह से देखा है। इस तरह से फिर गरीब आदमी को निशाना बनाना, ताकि एक डर बैठ जाए पूरे समाज में, न गरीब जुर्रत करे रुकने की, न अमीर जुर्रत करे, न एडमिनिस्ट्रेटर रुकने की जुर्रत करे, न एक वेल एजुकेटेड पर्सन रुकने की जुर्रत करे, न सवाल पूछने की जुर्रत हो किसी को। उस तरीके का टेररिज्म फैलाया जाता है। तो उसके बाद हमारे मामा जी को, वो J&K पुलिस में थे, वो डिस्ट्रिक्ट लाइन से बाहर आ गए, उस पर कोई 7-8 गोलियां दाग दी। और उसके अंतिम फेस्टिवल में हमारा ये रिवाज होता था कि चूंकि मैंने बोला ना को एग्जिस्टेंस हम ही चला रहे थे, जब किसी मुसलमान की डेथ होती थी तो हम पहले उनके साथ कब्रिस्तान तक जाते थे, कब्र खोदने के वक्त उधर खड़ा रोते रहते थे। इस तरह से वो भी जब हिंदू की, किसी रेस्पेक्टेड हिंदू की डेथ वगैरह होती थी तो वो भी आते थे उधर, 2-4 बंदे खड़े रहते थे कि भाई वी टू आर प्रेजेंट हियर। जिस दिन मेरे मामा जी की डेथ बॉडी का अंतिम संस्कार करना था, एक भी नेबरर सामने खड़ा नहीं हुआ। तो ये पूरी मैसेज दी गई थी कि ये काफिर लोग हैं, इनके अंतिम रिचुअल्स में शामिल नहीं होना है इनको। मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे 2 प्रोमिनेंट लीडर्स थे अनंतनाग में, मतलब स्वर्गीय प्रेमनाथ भट्ट एंड हरजीलाल जैद। ये दोनों एडवोकेट थे लेकिन प्रोमिनेंट लीडर्स थे। जब प्रेमनाथ भट्ट का देहांत हुआ, मतलब उसका मर्डर हुआ, उसको उसका बलिदान हुआ स्वर्गीय का, तो अगले दिन जब हम उसकी लास्ट क्रिया के लिए बॉडी लेकर जा रहे थे, उसमें तमाम प्रकार के हिंदू, जो कश्मीरी न थे, पंजाबी थे,
मतलब सब नॉन मिला कश्मीरी, हाँ नॉन कश्मीरी स्पीकिंग हिंदूज भी शामिल हो गए, तो हम राम नाम सत्य बोल रहे थे। तो हम्म, पीछे से वही लोग हमें बोल रहे थे द हरजी लाल कहती है, यानी द नेक्स्ट लीडर हरजी लाल, वो कहाँ है? ये तो गया, हाँ, वो बोलो कहाँ है? तो हरजी लाल कहते हैं, हम बोल रहे थे राम नाम सत्य है, वो दीवारों के ऊपर से बोल रहे थे हरजी लाल कहते हैं। तो वो कहाँ है? हरजी लाल कहाँ है? उसको भी दिखाओ, उसकी भी यही हालत करेंगे। ये मतलब इस किस्म का डर बिठाते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता है कि ये किस प्रकार का। अच्छा, इनके पास दया नाम की कोई चीज उस वक्त नहीं होती है, पता नहीं, मैं हैरान होता हूं। ह्यूमनिटी, ऐसे में अगर इनके साथ मिलेंगे तो ये बहुत ह्यूमनिटी दिखाते हैं, हम्म, जबरदस्त। लेकिन उस वक्त या तो इनके रिलीजन में ये ऐसा है कि दिस इज ए गुड काम, ये एक अच्छा काम है, आपको जन्नत एग्जैक्टली। मिलेगी, Hey, जन्नत that is मिलेगी why आपको। I'm telling, that is why I have a video. Kafir reads the Quran. Kafirs have to understand that for them it is a moral duty. We are आप seeing देखिए it ना, as, yeah. आप Hmm. देखिए ना, मतलब आज मैं एक पढ़ रहा था एक कि बंगाल में एक इमाम ने बोला है हिंदू को राइट ही नहीं है वोट देने का, इट इज फॉरबिडन इन इस्लाम। अच्छा, ये हमें ये चीजें पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में। हमें क्या बोलते थे वहां जब हम अरे वोट डालने जाते हम थे? लोग तो कुरान पढ़ता ही नहीं, इसलिए हम मुफ्ती के साथ कुरान पढ़ते हैं अभी। हाँ, अभी बात तो सुनो ना, मतलब अंडरस्टैंड। हम जब वोट डालने जाते थे तो हमें कहा जाता था कि आपका वोट हमने डाल दिया। लेकिन आज जब मैंने ये सुना कि उस इमाम ने ये बोला कि हिंदू को राइट ही नहीं है वोट डालने का, तो ये मेरे को पीसफाई इसी चीज से कर रहे थे कि वो तेरा तो हमने ठीक डाल ही दिया। बोलता है, जिम्मी धिम्मी इसका राइट नहीं है। ऐसे ही तो वो काफिर को जैसे देखता है। ठीक है, बोलिए। तो रात में तो आप, हाँ, आपको जो तो स्टोरी है वो, हाँ, तो मतलब ये डर लगता है कि इनको, मतलब दयाहीन ये इतने कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन बी ए मैन सो। हम देखते हैं कि कभी कोई हथियार चलाते रहते हैं जमीन पर किसी चीज पर, तो हम देखते हैं कि कोई कीड़ा सामने आया, हम रुक जाते हैं। इवन क्रिश्चियंस वो भी रुक जाते हैं कि भाई कीड़ा सामने आया। मुझे परसों मैं मिसिस को बोल रहा था कि भाई यहाँ सब्जी में चूहे लगे हैं, कुछ दवाई लाएंगे। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मारने वाली नहीं लाना, पकड़ने वाली लाओ कुछ मशीन, दैट इज व्हाट मारने सुहा वाली भट्टा नहीं। आइडियोलॉजी। माथा में वो जो है ना माजब, दैट इज द थिंग। हाँ, सो रात में कैसे आप कैसे एस्केप किया वो सब? अच्छा, फिर बड़ी मुश्किल से मेरा एक ड्राइवर, ऑफिस का ड्राइवर था, सरदार आदमी। तो जब मामा जी की भी डेथ हो गई, पूरा माहौल ही खराब हो गया, उसको भी मार दिया। तब भी मैंने एक कोशिश की, मैं एक मुसलमान दोस्त हु वाज मतलब लीडर इन आवर विलेज, तो उसको मैंने कहा कि भाई हम क्या करें, हमारे साथ आप हमें एश्योरेंस दे दो कि हम रुके यहाँ पर। पता है आप उसने मुझे क्या बोला? उसने बोला कि भाई हमें पता नहीं दूसरे विलेज से कोई बंदा आएगा, हम उसको क्या कहेंगे, वो हमें भी मार सकता है, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। आफ्टर माइग्रेशन मुझे हर डिस्ट्रिक्ट का, मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर में, जो भी कोई मिला उसने भी यही बोला कि हमें यही कहा गया। यानी ये भी एक अंदर से पूरी तरह तैयारी थी कि अगर ये आपके पास हेल्प मांगने को आए प्री तो इनको प्लान। बोल, हाँ प्रीप्लान्ड, इनको बोलना कि भाई हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन दूसरे विलेज के बच्चों को क्या करेंगे, वो तो फिर हमें भी मारेंगे। ये पूरी तरह से एक मतलब प्री प्लान सजा था। हुआ बिछा हुआ जाल था पूरी तरह से। तो अनिहा मैंने उस सरदार जी को बड़ी रिक्वेस्ट की, तो ही अरेंज्ड ए ट्रक फॉर मी। मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी, माय बॉबी वाज प्रेग्नेंट। उन हालात में मैं और मेरा एक कजिन, हम लेडीज को तो ट्रक वक में रखा, लेकिन मैं और माय कजिन, हम छत, ट्रक के ऊपर एक टूल बॉक्स होता है, उसमें हमने, सर्द रात थी, जनवरी की रात, हे भगवान, यहाँ तो जनवरी की रात, इसको हम यहाँ कश्मीरी में चिले कलान बोलते हैं। ये सबसे
ठंडी सीजन ठंडी होता है, जब माइनस टेम्परेचर होता है, 8-10 राइट। डिग्री तक माइनस होता है, तो हम उस टूल बॉक्स में तरपाल के नीचे सोए और बानहाल टनल के इस पार हमने उसमें से हम बाहर निकले हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि घर से निकलना एक शरीर से एक रूह निकलने के बराबर होता है, आत्मा निकलने के बराबर होता है। लेकिन हमें किसी चीज का दुख नहीं था, ना अपनी गाय का, ना अपने बछड़े का, ना अपने पेड़ों का, ना अपने ड्राई फ्रूट्स का, ना अपने सेब के बागान का, ना अपनी खेती का, ना किसी चीज का। हमें टनल के इस पार पहुंचकर हमें यह लगा कि हम खुश हुए कि हम जीवित बच निकले। ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था। तो अच्छा, बड़ी आपको मुश्किल से, छोटा भाई तो श्रीनगर में थे उस टाइम, हाँ वो तो, हाँ उसको तो श्रीनगर कैसे, में था। हाँ कैसे वो, हाउ वाज ही सेव्ड, हाउ डिड ही एस्केप? अब देखिए ना, वो भी एक बड़ी विडंबना की बात है। ही वाज वर्किंग इन बीएसएनएल। उसको डिपार्टमेंट ने, बीएसएनएल में मतलब एक टेलीफोन डिपार्टमेंट होता है इंडिया में, भारतीय संचार निगम। हाँ, तो वो उसको जानते। डिपार्टमेंट ने घर पर एक लैंडलाइन टेलीफोन, उन दिनों मोबाइल इंडिया में नहीं होते थे, एक लैंडलाइन हम्म, टेलीफोन दिया था। तो जहां वो डेरे पर था, वहां बाहर कोई 50-60 हजार की भीड़ आ गई। तो उन्होंने वो बड़ी जबरदस्त यही मतलब नारेबाजी कर रही थे। तो इतने में सीआरपी के कुछ जवान उतावले हुए, उन्होंने कंट्रोल करने के लिए फायरिंग की। तो वो सब, उनमें से लगभग 50 बंदे हमारे भैया के घर में घुस गए, डेरे में, ओ वाह। और फोन करने लगे अपने घर वालों को कि हम ठीक हैं, आप घबराना नहीं, यहाँ एक मंदिर भी है और एक पंडित जी का घर है, हम उसी में बैठे हैं। इतनी बुरी हालत थी कि मतलब हमारे पास गांव में फोन नहीं था, हमें कुछ पता ही नहीं था। अल्टीमेटली मैंने एक टैक्सी अरेंज की, टैक्सी क्या, मैं सड़क पर खड़ा रहा, एक टैक्सी आई, उस टैक्सी में मैं बैठा। वहां पर हमारी भाभी भी थी, उस डेरे पर एक बच्ची भी थी। तो जब हम, जब एक टैक्सी आ गई तो मैंने हाथ से उसको इशारा किया, वो रुक गई। जब मैं उसमें चढ़ा तो कुछ दूर चलने के बाद उसमें एक ऑलरेडी बंदा बैठा था बैक सीट पर। तो वो मुझे बोलता है कि आपने महाराजा हरि सिंह का बंगला क्यों नहीं जलाया। पहले नाम पूछा, मैंने जानबूझकर बोला मेरा नाम बशीर अहमद है, मैंने भूषण लाल नहीं बोला। ये मुसलमान नाम लिया। हाँ, तो उसने बोला कि महाराजा हरि सिंह का बंगला क्यों नहीं जलाया, वो हमारे एरिया में पड़ता था। तो मैंने बोला कि सर, जो प्रोग्राम आता है उसी को फॉलो करते हैं, ये संदेशा नहीं आया। बोला आप इसको जला देना। मैं बोला जनाब जला देंगे। तो अनंतनाग पहुंचकर उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोला आप नीचे आ जाओ। मुझे अब डर लगा कि इसको पता चला मैं हिंदू हूँ। हाँ, इन बिटवीन द वे क्या हुआ कि आप बोल रहे हैं ना गवर्नमेंट कहीं नहीं थी क्या, इन बिटवीन द वे एक पुलिस वाला आ रहा था इस टैक्सी की तरफ। तो उसने टैक्सी ड्राइवर को बोला रुको। तो वो टैक्सी ड्राइवर रुका। तो जब पुलिस वाला सामने आया तो इसने उसको पूछा आगे कुत्ते तो नहीं है। उसने बोला सर नहीं, आगे कुत्ते नहीं है। कुत्ता मीन्स इंडियन आर्मी, ये कोड वर्ड इट था। वाज ऑल प्लान, इट वाज वेरी वेल प्लान। हाँ, तो अब जब उधर मुझे उतारा तो मैं डर गया कि इसको शायद मेरा पता चल गया है, मैं हिंदू हूं, अब ये मेरे को मार देगा। मेरी टांगे कांपने लगी, मैं उस सर्दी में मैं पसीना पसीना हो गया। तो उसने मुझे डायरेक्ट एक एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस के पीछे लिया। बोला ये देखो, इसको मैंने कल बम धमाके से उड़ाया, यही करना है। मैंने शुक्र किया कि इसको यही दिखाना था, मुझे नहीं मारना था। तो फिर बोलता है रास्ते में कि इस बार हम जीत गए, हमने कुछ नहीं किया, हम बार बार लड़ाइयां करते थे लेकिन इन काफिरों को भगा नहीं पा रहे थे, अब की बार इनको भगा दिया, भाग रहे हैं मछलियों की तरह। मैंने बोला हाँ जनाब, ऐसा ही होना चाहिए, मजबूर था। तो आगे जाकर खनाबल में वो उतर गया। तो वो ड्राइवर मुझे बोलने लगा कहाँ जाना, मैंने बोला श्रीनगर जाना।
बोलता अच्छा, मैंने भी ड्राइवर जाना है। की हिंदू थे न सिख थे? नहीं, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान ही मुसलमान था वो थे। ड्राइवर। हाँ, उसने मुझे बोला कहाँ जाना आपको, मैंने बोला मुझे श्रीनगर जाना है। उसने बोला मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो मैं भैया के घर डेरे पर पहुंचा। बड़ी बुरी हालत थी वहां, उधर तो खून के कुछ धब्बे भी बाहर लगे थे। मुझे लगा कि इस परिवार को खत्म ही किया है, क्योंकि ब्लड डॉट्स बाहर हैं। फिर भाई से पूछा क्या हुआ, उसने बोला ऐसे। फिर उसको डिपार्टमेंट ने बीएसएफ की गाड़ियां अरेंज कर दी ऑफिस शिफ्ट करने के लिए, बीएसएनएल का जो टू जम्मू। तो हेड ऑफिस उन दिनों सीजीएम जो होते थे, चीफ जनरल मैनेजर, वो श्रीनगर में ही होते थे बिकॉज इट वाज कैपिटल। फिर बीएसएनएल का ऑफिस भी शिफ्ट हुआ जम्मू, तो उसमें वो निकल आए। बड़ी मुश्किली से हम जान बचा कर आए हैं। ये परमात्मा का कुछ था। और मैं मानता हूं कि ये उनकी गलती थी जो उन्होंने रिलीव गिलीव और चलिव बोला। उन्होंने अगर चलिव नहीं बोला होता, यानी भाग जाओ, और दो ही ऑप्शन रखे होते, तो हम खत्म हो गए होते सबके सब। हाँ। आपको मैं बताऊं, जो वंधामा का एपिसोड हुआ ना, वंधामा का, वहां उसमें 23 बंदे मारे गए, 23 बंदे, सब पूरे गांव के। वो भी एक मतलब कहानी है इनकी कि कुछ गांव ने ना मिलजुल कर ये फैसला किया था कि हम बैठेंगे मिलजुल कर। तो इन्होंने क्या किया कि उन बस्तियों पर अटैक करना शुरू कर दिया कि पूरा गांव ही साफ कर दो, बाकी जो गांव रुके हैं वो भी भाग जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, वंधामा में 23 आदमियों को रात शब कद्र के दिन, लाउड स्पीकर चल रहा था, रात को वो इबादत कर रहे थे, दुरूद खानी कर रहे थे, वो जोर से रखा था ताकि कोई फायरिंग की आवाज न सुन सके। तो उनको बोला कि आप लाइन में बैठो। 22 बंदूक को बैक में गोलियां लगी हैं, क्योंकि उनको दीवार की तरफ मुंह करके रखा था। लेकिन एक छोटा बच्चा किसी माँ की गोद में था, उसके माथे पर गोली लगी थी। क्यों? क्योंकि जब उसने उसको कंधे पर रखा था तो उसका मुंह पीछे की ओर था, उसको बैक में गोली नहीं रखी थी। इस बिना बीज को भी, उस बच्चे को वो लेकर मुसलमान बना सकते थे, वो भी मिलिटेंट बन जाता। वो 2-3 साल का बच्चा था, उसको क्या पता थी हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, व्हाट इज राइट। इंडिया, व्हाट इज पाकिस्तान। तो उसको वो ले यजीदी जाते। को ऐसे ही किया, बच्चों को लेकर कन्वर्ट करके उसको एंटी यजीदी बना दिया। नहीं, मतलब उसको ले सकते थे वो, दे वर इन ए पोजिशन कि वो ले, मगर उसको भी गोली मारी। यानी बीज को भी खत्म करना है, बीज को भी बचाने नहीं देना। ওইটাই अच्छा তো हमारे, জাতি বিধ্বংস, দ্যাট इज व्हाट हाँ, दैट জনপন্থী इज, জন अच्छा জাতি उसके, বিধ্বংস। आप सुनो ना मेरी बात, ये सुनो कि अब मैं चलो उनका दुश्मन था, मुझे भगा दिया, मैं काफिर था, मुझे भगा दिया, बट माय सिंबल, माय टेम्पल, माय शिवलिंग वाज देयर। एवरीथिंग। वो केपी रोड पर, इसी खनाबल पहलगाम रोड पर था। उसको इन्होंने, ये देखो, ये मेरा वो शिवलिंग है जो आपको हाँ दिखेगा। हाँ हाँ, दिखाया। एक ये छोटे शिवलिंग है, इस पर ये 1100 शिवलिंग है एक शिवलिंग पर। हाँ हाँ। इसको ब्लास्ट से उड़ा दिया, ब्लास्ट करके बुड़ा, यानी इनकी निशानी भी पीछे नहीं रहनी चाहिए। हिस्ट्री को मशक कर दो, মানে एकदम एनाहिलेट, हाँ, एकदम एनहाइलेट, टोटली खत्म कर दो। तो ये बड़ा मतलब ऐसे हालात हुए हमारे साथ, बहुत ही दुखद दुखद जो होता है ना, वो दुखद था वो। So, G, thank you. But I have some more, couple more questions. हाँ, बोलिए Despite बोलिए बोलिए। everything, despite बिफोर एनी क्वेश्चन, लास्ट में मैंने एक अपील भी करनी है, हाँ हाँ वो बोलिए। मुझे करने देना लास्ट में हाँ हाँ एकदम, हाँ ठीक है, जरूर। So, despite everything, if you have a chance to go back to Pahalgam or Kashmir, which is your homeland, would you go back or no? नहीं, अब उनके पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, अब तो पूरा रूप उनका देख लिया हमें। हमारा एक ही डिमांड है कि हमारे लिए एक अलग जगह कारू की जाए कश्मीर में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और लेजिस्लेटिव कंट्रोल हमारे Safety हाथ में हो। and हाँ safety. अच्छा, हाँ। ये जो आप जो हमको कहानी सुनाया, ये हाउ डू योर चिल्ड्रन रिएक्ट टू दिस? दे वर वेरी स्मॉल देखिए एंड वन देखिए वाज नॉट इवन बोर्न। देखिए, मैं उसमें ये कहूंगा कि हमने बड़ी कोशिश की कि इसको
पूरी दर्दनाक तरीके से अपने बच्चों तक न पहुंचाए। ये हमने कोशिश की, लेकिन कुछ कुछ सच उन्हें कश्मीर फाइल से पता चला। जब कश्मीर फाइल मेरे बच्चे ने देखी, वो आकर मेरी गोद में बैठकर रोया, पापा आप कैसे बचे हो। हम उनको ये मतलब फंडामेंटलिस्ट बनाना नहीं चाहते थे, उससे ह्यूमनिटी खत्म होती है। तो हम उनको थोड़ा मतलब ऐसे बोल रहे थे कि सरकार की गलती थी, वो थी, ये थी, मेरा हमसाया उतना जालिम नहीं था, माय नेबर वाज, ही टू वाज, इंक्लिनेशन थी उसको भी पाकिस्तान की, इस्लाम की, चूंकि उसका रिलीजन है। मगर इतना बुरा हमने उनको नहीं, जैसा मैं अब आपको बता रहा हूं। For them to hate तो Muslims, yeah, yeah, हाँ, ऐसे नहीं, that's ऐसा right. क्या हो, ऐसा क्या होता है कि अगर क्रुअल्टी बच्चे के दिमाग में आ जाए तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा नहीं होता है। Exactly. Acha, my last question. With all of this, what message do you have for the Hindus of Bangladesh who are facing genocide now? What message do you give to दिस them? इज दिस यही अपील मैं करना चाहता था, यही अपील। मैं आपके जो एपिसोड देख रहा, आपके जो प्रोग्राम देख रहा हूं, आपके कुछ लेख भी मतलब राइटिंग भी कुछ आती है मेरे पास जो मैं देखता हूं। My message to them is only, it is not only to them, it is all Bengali people. जो बंगाली पीपल वेल सेटल्ड है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एक बंगाली पीपल को यूनाइटेड रहना चाहिए। यूनाइटेड, एक फैसला, जैसे हमने एक फैसला लिया कि अब कोई प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ इंपॉर्टेंट है, हमको भागना है, हमको यहां से भगाया गया हमें, लेकिन हमने ये फैसला लिया कि ज्वाइंटली निकलेंगे। ऐसे नहीं कि इन आतिताइयों के हाथ मारे जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसमें मुझे दुख है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने को विश्व गुरु बोलते हैं। अगर वो विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो बगल में जो हमारे हिंदू हैं उनको भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए हमारी सरकार को, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन उसको। लेकिन बंगाली पीपल्स को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे बड़ा दुख है, हम कश्मीर में जब थे ना, जब नॉर्मल हालात थे, तब हम देख रहे थे कि आपके बंगाल से हिंदू लड़कियों को लाकर बेचा जाता था, कन्वर्ट करके। हम वहां देखते थे, मेरे गांव में 2 लड़कियां आई थी, मेरे गांव में दूर सुदूर विलेज में, रिमोट विलेज में भी 2 ट्रक ड्राइवरों ने 2 लड़कियां लाई थी। इसका रीजन क्या है? जो वेल सेटल्ड बंगाली है उनको एजुकेशन और हेल्थ ऑफ द बंगला पीपल, उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे में क्या हुआ कि जो हमारे वेल सेटल्ड पीपल थे, इवन इन यूएसए, कनाडा, अमेरिका, दिस यूके, जो भी थे, उन्होंने हमारे बच्चों को हेल्प की एजुकेशन में, उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पुअर फैमिलीज की हेल्प की। से सारे बंगाली जो वेल सेटल्ड है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी बांग्लादेश में हमारे फंसे पड़े गरीब कमजोर, इवन इन बंगाल लोग हैं, उनकी प्लीज, कुछ नहीं होता है अगर आदमी को करोड़ों की बिजनेस है, लाखों कुछ दान में दे दे उन लोगों के लिए, बट इन ए प्रॉपर वे। एक ऑर्गेनाइजेशन हो, जो जब हॉस्पिटल में बंदा हो उसको हॉस्पिटल में पेमेंट हॉस्पिटल को की जाए, बच्चे को डायरेक्ट ट्रांसफर फंड किए जाए फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। और मतलब बंगाल सरकार से भी एक दबाव बनाना चाहिए, जैसे हमारे लिए महाराष्ट्र ने ये इंजीनियरिंग सीट्स वगैरह खाली मतलब खोल दी हमारे लिए, सुपर न्यूमरल। ऐसा बंगाल सरकार को भी अपने बंगाली बच्चों के लिए जो उधर से हैं, बांग्लादेश से, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व करनी चाहिए सुपर न्यूमेरिकल टेक्निकल एजुकेशन में, ताकि उनको कुछ जॉब मिले। उन एक्चुअली क्या होता है कि वही मूव कर सकता है जिसके पास व्यवस्था हो, जिसके पास फंड्स हो, जिसके पास फाइनेंसेस हो, वही मूव कर सकता है, वही ये सोच सकता है कि मैं छोड़ सकता हूं इन चीजों को। मुझे बंगाल इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, माय रिलीजन, माय इतिहास, माय दिस एजुकेशन, सिविलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। उसको बचाना है, मेरे परिवार को बचाना है, तो वो उसी देन ही कैन थिंक अबाउट दैट जब यहां से कोई हाथ पकड़ने को तैयार होगा।
वन हेल्पिंग हैंड अगर यहाँ से तैयार होगा तो बंगाल में मतलब सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर पैदा हुए हैं, उनके वंशजों को चाहिए कि वो अपने बंगालियों की हेल्प करें। ऑल ओवर इंडिया के हिंदुओं को चाहिए, इवन अगर कोई मेरे पास भी कोई मतलब मैं छोटा मोटा बंदा हूं, एक पेंशनर हूं, छोटी मोटी इमदाद में भी कर सकता हूं अगर मुझे पता चले कि ये सोर्स है भेजने का, ये तरीका है, हर कोई कर सकता है, इवन इन आवर समाज आल्सो, क्योंकि हम समझ सकते हैं उनकी पेन, उनका दर्द हम समझ सकते हैं, किन हालात से वो इस वक्त गुजर रहे होंगे। हर इवनिंग को उनके लिए लग रहा होगा कि यमराज दरवाजे पर खड़ा है। हर इवनिंग रात ज्यादा डरावनी होती है एक हिंदू फैमिली के लिए ऐसे माहौल में। हाँ, लाइफ एंड डेथ ऑलमोस्ट। तो सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल बंगाली वेल सेटल्ड पीपल इज टू हेल्प देम, इवन टू ऑल इंडियन हिंदू समाज जो है, संगठन जो है, उनको सामने आना चाहिए। उनकी दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, उस पर ध्यान दिया जाए। दिस इज माय रिक्वेस्ट, हैंड होल्ड रिक्वेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्टोरी इतना, आई मीन इट्स सो पैशनेट, it touches, you know, when you read a lot of theory, that's one thing which I do, but these stories are a path to our healing. So thank you, namaskar. Namaskar, namaskar, namaskar to all Bangla people. Thank you. Okay, Namaskar madam. to all Okay. of Namaskar. survivors. Thank you.